Okay then, so we start with definite integrals today, and definite integrals is basically 7.9, 7.10 and 7.11. Ajab, before we go to definite integrals, I want to make sure that you guys have done your indefinite integrals properly, क्योंकि अगर indefinite integrals आपको नहीं आ रहा है तो definite integrals में मुश्किल हो सकती है. Correct? So right now what we are going to do is we are going to do 7.9 का introduction and 7.10 का introduction, and almost like they are like equally है दोनों भी almost similar, so we are going to do both of them together. Okay, so what is basically integration या फिर definite integrals? Indefinite integrals क्या है? Indefinite integrals is a group of curves, correct? अब हमने देखा था कि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है, टेक्निक ऑफ फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हियर in definite integrals we find out the area under a curve. definite integrals में we find out definite integrals we find the area under the curve, under a curve, करेक्ट? इसका मतलब जब हम इंटीग्रेशन की साइन देते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन विच विल बी फ्रॉम सपोज से ए टू बी. इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये आपका y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस. ओके, एंड वी हैव ए फंक्शन से विच इज समथिंग लाइक दिस. ओके, ये फंक्शन का this is going to be y is equal to f of x. Okay, now let us say that this is some point where x is equal to a and this is some point when x is equal to b. Correct? Let us draw this line straight like this. तो ये एक area है ना, getting it? ये area जो है, this area we are talking about. Correct? What is this area? This area of the enclosed space, ये जो enclosed space है between the point A and B, correct? This is exactly what we have to find out. If you have to see the theoretical concept, तो उसमें a theory concept which is called the area function. See, now we all know what a function is. Function क्या है? That for every single input there will be one and only one output, है ना? वी ऑल नो व्हाट अ फंक्शन इज. हमने अभी पहले लेसन से फंक्शन हम लोग देखते आए हैं, करेक्ट? तो इफ दैट इज अ फंक्शन देन व्हाट इज एन एरिया फंक्शन? वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इज एन एरिया फंक्शन. एरिया फंक्शन क्या होता है? देखो, सिमिलरली आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस, और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. लेट्स से ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, करेक्ट? एंड वी आर टेकिंग एज वी टुक दिस, यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया. अच्छा, दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये हमारा a है सपोज और ये हमारा b है. तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस एंटायर एरिया टुगेदर, ओके, ये फंक्शन तो हमारा y इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. बट वॉट वी आर गोइंग टू डू, ये a और b के बीच में वी आर गोइंग टू टेक सम पॉइंट say x. Not this point can be anywhere. Okay, this point can be anywhere between a and b. I am taking it here. It can be anywhere. Now if we draw a line from here, तो ये जो area है under this curve, you can see that it is divided into two parts, right? So if we want to find the area of this part, suppose, है ना, हमको सिर्फ इतना ही ढूंढना है, तो इसे कहेंगे हम एरिया फंक्शन, करेक्ट? दैट मीन्स वी कैन से दैट एरिया ऑफ द, ये जो एरिया अंडर द रीजन, एरिया अंडर द कर्व, उसे कैसे बोल सकते हैं हम? देयरफॉर वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स, करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया, करेक्ट? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स
will give us that area that we are looking, which is called the area function. ये जो लिखा है उसे कहते हैं, this is basically nothing but the area function. करेक्ट. सी इसमें क्या होगा, एज वी इंक्रीज x, अगर हम लोग x इंक्रीज करते जाए, यू कीप x हियर, तो ये एरिया फंक्शन हमारा इंक्रीज होगा. करेक्ट. एज वी डिक्रीज x, तो इफ यू कीप शिफ्टिंग x हियर, द एरिया विल रिड्यूस. इफ यू कीप, आर यू गेटिंग इट? सी इफ यू कीप मूविंग दिस वैल्यू ऑफ x टूवर्ड्स b, correct, so this area under the curve that we are going to find out will increase. If you keep moving this value of x towards the left, तो ये area छोटा छोटा होता जाएगा, it will become less. Correct. So this is basically what is called the area function. Now in this 7.9, from the exam point of view, we will see this. See, there are two theorems which we need to do. Okay, which is the first fundamental theorem of calculus. देखते हैं पहले क्या है. Okay, तो this is called as the first, एकदम चालू होते ही खत्म हो जाता है वो theorem, so pay attention. Okay, first fundamental theorem of calculus. What does that mean? Theorem of calculus. Okay, that means if a of x is equal to integration of a to x of f of x, जो अभी हमने देखा dx, अगर ये है, then we can say that derivative of d by dx of that area of that function a of x is equal to f of x. Correct. That means if area of a function, ये क्या represent करता है? What is this representing? ये जो है ये integration. What is this integration representing? This integration is representing the area function. Correct. This integration is representing what? It is representing the area function. Correct. है ना. एंड तो ऑब्वियसली जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वी विल गेट बैक द फंक्शन. करेक्ट. सो एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर. ओके, दैट मीन्स व्हाट, अगर आपका एरिया फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x sin x, करेक्ट, dx. ओके, if this is the case, then क्या आएगा? अगर if ये है, if this is the case, then what you will have? Then we can say that d by dx of the area function, then you should get sin x. Correct. So if we will come back to this now. Okay, मतलब थोड़ी देर के बाद we'll come back to this again. Okay, but keep in mind, ये थोड़ा समझ लेना क्या है, आगे आगे जाके when we do this again and again, you will come to know what it is. Okay, all right. So I hope एक 5% something you probably would have got. Correct. Okay, let's go to, okay, so now let us understand what is called as the second fundamental theorem of calculus. This is called as the second fundamental theorem of calculus. क्या है ये? See, in definite integrals we'll have an integration from a to b of a function f of x dx. Correct. So remember, when we used to do our indefinite integral functions, that time we used to say that integration of f of x is equal to, we used to write a capital F and an x. Correct. The same thing continues here, but थोड़ा सा change होगा यहाँ पर. What we are going to write here? So this is now equal to, देखो जब हम करते थे ना, when we used to write down, when we used to write down that integration of f of x dx is equal to
अ कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, करेक्ट। तो ये हमारा जो इंटीग्रेंड है, दिस इज अवर इंटीग्रेंड, और ये होता था उसका एंटी डेरिवेटिव, करेक्ट, याद है, दिस यूज टू बी दी एंटी डेरिवेटिव, ओके। बट इन इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हम लोग क्या करेंगे, indefinite integrals when we have, this is about indefinite integrals जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन जो indefinite integrals होता है वहां पे we write it a little differently। कैसे लिखते हैं that we will see now, okay। so in definite integrals we will write this as integration of a to b f of x dx is equal to उसका anti derivative जो हम derivative the way we used to write it, and this will also go from a टू बी, करेक्ट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी एफ ऑफ बी, वैल्यू विल बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, करेक्ट। दिस पर्टिकुलर थिंग इज द, दिस इज द, यू कैन से दिस इज द वैल्यू। जब आप ये वैल्यू ए और बी की इसके अंदर डाल के जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू देयर, करेक्ट। दैट मीन्स व्हाट, आई मीन टू अंडरस्टैंड इट प्रिसाइसली, कि ये जो एफ ऑफ बी है, करेक्ट, दैट मीन्स दिस एफ ऑफ बी एक्चुअली इज इंटीग्रेशन ऑफ योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एट बी, करेक्ट। और ये जो है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एट ए, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे सी नहीं है, देर इज नो सी हियर, प्लस सी नहीं लिखते हम, करेक्ट, बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना, क्योंकि आप प्लस सी लिख के करोगे क्या, देखो क्या होता है, वील सी व्हाट हैपेंस इफ यू राइट प्लस सी। आई एम गोइंग टू इरेज दिस बिट, ओके, दिस आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज। और प्लस सी लिखकर कुछ भी फायदा नहीं होता है, वील सी द प्लस सी गेट्स कैंसल्ड ऑल बाय इटसेल्फ, सी व्हाट हैपेंस, ओके। एग्जाम्पल, आप सपोज यहाँ पे आपके आंसर आएगी, इंटीग्रेशन किया है आपने फंक्शन का, एंड सपोज लेट्स अज्यूम you want to write down के f of x और आपने लिखना है प्लस c, and this is going to be from a to b। now we are going to put this, because ये function तो use करना पड़ेगा ना, ये definite integral का है ना ये formula, तो what we are going to write here, therefore we will write down in f of b plus c minus f of a plus c, है ना। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होगा, वी विल हैव एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए, ये माइनस और माइनस दिस विल बिकम माइनस सी, करेक्ट। तो ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है आपके पास, यू हैव एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, करेक्ट। सो बेसिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू शो दिस, when you try to use this formula, so you will see that the c automatically gets cancelled, correct। we'll do a couple of sums and then you'll understand it much better। of course I don't expect you all to understand it absolutely immediately, correct, but आपके सामने अभी जो भी है just उसको लिख लेना, okay, so that you understand। so basic formula is this one that we are going to use in our definite integrals, ठीक है। थोड़े sums करते हैं and then you will get it much better, okay। Alright, can we go to the next one? Okay, so let's do an example there. Suppose if we have to do integration of 2 3 x square dx, correct। आपको क्या करना है, हमें we have to evaluate this, okay। so पहले see there are 4 techniques in which we can solve। तो एक सबसे आसान वाली टेक्निक देख लेते हैं। This technique is where we will solve this sum thinking that this is indefinite integral, मतलब कि लिमिट्स निकाल देंगे, ये 2 और 3 उसके लिमिट्स है ना, तो उसे निकाल देंगे। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, we'll write down x square dx। नाउ x स्क्वायर dx का फॉर्मूला अगर आपने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स किया है तो आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x, sorry one second, is equal to what, this is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1,
तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। और मैं बार बार अभी डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये फॉर्मूलाज नहीं लिखने वाली हूँ, बिकॉज बहुत टाइम जाएगा ऐसे। we'll have some sums which will need a quick answer, तो we are not going to spend so much time there, okay? डेफिनेट इंटीग्रल्स अगर करना है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आपको आना चाहिए। बार बार ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आई एम नॉट गोइंग टू राइट इन हियर। तो इसका यहाँ पे कितना आएगा, दिस विल बी सिंपली एक्स स्क्वायर बाय 2, okay? Sorry, not x square by 2, this will be x2 plus 1, so it will be x cube, it will be x cube, है ना? समझा कि नहीं समझा भैया? ओके चलो, it will be x2 plus 1 by 2 plus 1, करेक्ट? तो ये क्या आएगा, दिस विल बी आवर x cube plus c, x cube by 3 plus c, करेक्ट? नाउ यू अप्लाई लिमिट्स, है ना? अभी आप लिमिट्स अप्लाई करो, नाउ अप्लाई लिमिट्स। हाउ यू विल डू दिस? सो ये अभी लिमिट्स हमारा, देयरफॉर हमारा बेसिक इंटीग्रेशन जो था दैट वाज x स्क्वायर dx फ्रॉम 2 to 3, ये लिमिट्स है ना हमारे, उसका आंसर हमको क्या मिला, वी गॉट दिस एज x क्यूब बाय 3 प्लस c, और यहाँ पे लगा दो लिमिट्स, करेक्ट? एंड देन यू अप्लाई दैट। क्या करोगे यहाँ पर, यू कैन यूज दिस एज यू नो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ना। एफ ऑफ बी क्या है, सो इट विल बी 3 क्यूब, ये b है ना और ये a है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 3 क्यूब बाय 3 प्लस c माइनस 3 क्यूब बाय सॉरी 2 क्यूब, इट विल बी 2 क्यूब बाय, क्योंकि ये 2 क्यूब है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, करेक्ट? 2 क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो यू ओपन द ब्रैकेट, यहाँ से एक 3 और एक 3 तो निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, दिस विल बी 9 प्लस सी माइनस, यहाँ पे इट विल बी 8 बाय 3, 8 बाय 3 माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, इट विल बी 27 माइनस 8 बाय 3, करेक्ट? दिस इज गोइंग टू बी 19 बाय 3। तो ये एक मेथड है, ओके? देयर इज डायरेक्टली, एक डायरेक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं, इतना लंबा हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, 2 लाइन में वो मेथड आ जाती है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? सपोज इफ वी हैव, विल टेक द सेम सम, है ना? द सम क्या था हमारा, कि इंटीग्रेशन ऑफ इट इज 2 to 3 x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम लोग उसको, another way of doing is that we directly use the formula f of b minus f of a, करेक्ट? कैसे करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर dx, पहले अगर उसको इंटीग्रेट करोगे आप तो आपको मिलेगा x क्यूब बाय 3, करेक्ट? ये जाएगा आपका डायरेक्टली 2 to 3, तो नाउ यू कैन पुट इट, ओके? गोइंग टू बी 3 क्यूब बाय 3 माइनस 2 क्यूब बाय 3, दिस इज इक्वल टू, अगर आपको 3 सेम रखना है तो आप रख सकते हो, यू कैन राइट डाउन 27 बाय 3 माइनस 8 बाय 3, दिस इज इक्वल टू 19 बाय 3, सेम आंसर, है ना? तो ये दिस इज ए मच इजियर टेक्निक। डायरेक्टली जब आपके पास एक फॉर्मूला होता है तो एक फॉर्मूला की अपनी खुद की एक स्ट्रेंथ होती है, एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी हैव दोज फॉर्मूलाज वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एंड ट्राई टू यूज देम। सिर्फ फॉर्मूलाज बाय हार्ट करके आपको कभी भी कुछ नहीं आने वाला है। मैं हमेशा हर एक क्लास में बोलती हूँ ये, आपको फॉर्मूलाज के साथ साथ उसका यूज भी आना चाहिए, ओके? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल हियर। So we have been given that, okay, this is integration of 4 to 9 and हमारा function है root of x divided by, this is 30 minus x to the power 3 by 2 the whole square का dx, okay? So we will use our substitution method जो हमने एकदम beginning of the lesson सीखा था,
we are going to you are going to solve this integration as indefinite integral. So we will use this as x by 30 minus x to the power 3 by 2 the whole square dx. ठीक है, तो यहाँ पे we will say let 30 minus x raised to 3 by 2 equals t. Okay, that means this will become what? This will become minus 30 का डेरिवेटिव, इफ यू डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, 30 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा एंड माइनस एक्स रेज टू 3 बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 3 बाई 2 एक्स रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1. करेक्ट, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. ठीक है, अभी दिस विल बी माइनस 3 बाई 2 एक्स रेज टू हाफ. अच्छा, हम लोग काम करते हैं, आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस लाइन, दिस बोर्ड इनटू सम पार्ट्स, ताकि ना आई विल नो हाउ टू वर्क, अदरवाइज क्लीनलीनेस रहेगा थोड़ा सा. ठीक है, सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू हाफ, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. ओके, हाफ का मतलब रूट ना, सो देन नाउ वी कैन से दैट डी एक्स इज इक्वल टू डी टू डी टी, ये माइनस 2 डी टी आएगा. करेक्ट, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 डी टी बाय क्या आएगा, दिस विल बी 3 रूट एक्स. करेक्ट, सो देयरफॉर वी कैन रीराइट आवर फंक्शन अगेन. ठीक है, वापस अभी वी आर स्टिल डूइंग इट विथ डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल पार्ट. करेक्ट, तो क्या आएगा इसको, दैट मीन्स इफ यू राइट डाउन इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ this will become integration of root x divided by t square into minus 2 dt by 3 root x. करेक्ट, तो ये और ये निकल जाएगा एंड वी कैन टेक माइनस 2 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 2 dt. अब ये छोटा छोटा मुझे बताना नहीं चाहिए. ओके, ये t यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इट गोज अप एज अ नेगेटिव पावर. करेक्ट, देयरफॉर दिस विल बिकम व्हाट, इफ यू इंटीग्रेट दिस, दिस विल बिकम माइनस 2 बाई 3 t raised to minus 2 plus 1, so this will be t raised to minus 1. Correct, that means this will become minus 2 by 3t. So we come back to our position, which is minus 2 by, and our t value was what, it was 3 minus x raised to 3 by 2. Correct, so this is what our original वैल्यू ऑफ t was. करेक्ट, अगर आप t को वापस डालते हो, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस हैज बीन, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव है ना. और हम व्हाट डू वी डू फॉर एंटी डेरिवेटिव, वी हैव टू देयरफॉर आवर जो f ऑफ x है, ओके ये जो है, सो अगर इफ आई हैव टू राइट इट अगेन, ओके सो इफ आई हैव टू राइट दिस अगेन, बैक टू 4 to 9 root of x by 30 minus x to the power 3 by 2 raised to 2 dx. इसे क्या करेंगे हम, दिस एक्चुअली हैज टू बी रिटन एज f of 9 minus f of 4. करेक्ट, बिकॉज f of b minus f of a, दैट इज द वे वी डू इट. तो अगर इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमारा f of x है. दैट मीन्स वॉट वी आर गोइंग टू डू, we are simply going to apply this formula here, और मैं I'm going to do it on the other side. तो उसको कैसे करेंगे हम, therefore we can write this down as f of x क्या आएगा अपना, this is equal to, यहाँ see here I am doing it on the top. okay, so this will be 2 by 3 into 30 minus, देखो f of b is 9 ना, this will be 9 raised to 3 by 2. I will draw a bigger line, ताकि मेरा ये लाइन है ना, ओके, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 9 raised to 3 by 2, करेक्ट, माइनस 2 by
into 4 है ना, so this will be 30 minus 4 raised to 3/2. clear? okay. अच्छा, एक बात हम भूल गए हैं कि बाहर हमारा 2/3 भी है ना, ये तो नेक्स्ट स्टेप में डालते हैं हम लोग उसको, नहीं सॉरी, ये 2/3 यहाँ पे, तो वी कैन टेक दिस 2/3 आउटसाइड एंड वी कैन राइट डाउन 2/3 इनटू ब्रैकेट। देखो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी 1/30 माइनस 9 इज 3 स्क्वायर, करेक्ट, 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2, करेक्ट। अच्छा, ये छोटा छोटा स्टेप्स अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो शायद पता चल जाएगा आपको, करेक्ट। सो 9 का 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर कट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट बाय 3 क्यूब, करेक्ट, माइनस यहाँ पे 1 बाय, यहाँ पे इट इज 30। सिमिलरली 4 का 2 स्क्वायर, 2 का 2 कट हो जाएगा एंड यू विल हैव 2 क्यूब, करेक्ट। ओके, अब वैल्यू क्या आएगी, this will be 2/3 into bracket, this is 1/27, 30 minus 27, correct, this is 30 or 3 cube is 27, so this is going to be 1/30 minus 27 is 3, correct, minus this will be, this is 30 and 2 cube is 8, so 30 minus 8 you will get 1/22, correct, that means this will be 2/3 into bracket, आपका LCM यहाँ पे आएगा 66 and 22 minus 3 that will give you 19, and when you open the bracket, तो 2 1s are 2, 2 33s are, so our final answer will be 19/99. This is the value of our integration, correct? Wonderful. चलो, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ऑब्वियसली वो तो सारे सम्स में रखना पड़ता है, करेक्ट। सो यहाँ पे और एक सम है, हम लोग कर भी सकते हैं उसको, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, अब ये सारे सम्स हम लोग वी विल एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ सम्स व्हेन वी डू आवर एक्सरसाइज करेंगे और जब एक्स्ट्रा कुछ सम्स करेंगे दैट टाइम। सो यहाँ पे जो t, ये सेम सम है ना, यहाँ पे हम लोग एकदम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ओके, वेरी वेरी इजीली वी कैन डू दिस। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू दैट क्वेश्चन हियर। ये शायद जब भी हमने क्लास लिया था तभी भी मैंने बताया था, क्योंकि बहुत मस्त मेथड है ये, ओके। सेकेंड टेक्निक से, ओके, डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन करके, ये 7.10 में करते हैं हम, ओके। तो 7.10 का मेथड है ये, क्या मेथड है देखते हैं। तो दिस वी हैड आवर इंटीग्रेशन, क्या था, 4 to 9 and it was root of x by is 30 minus x to the power 3/2 whole square dx, है ना। अच्छा, हमने क्या किया था यहाँ पर, we took 30 minus x raised to 3/2 is equal to t, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो, नाउ इफ वी चेंज द वेरिएबल, यहाँ पे हमने x का जो वेरिएबल था हमारा, ये जो x का वेरिएबल है उसको हमने क्या किया, वी मेड इट t, है ना। तो जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं, व्हेन यू चेंज द वेरिएबल फ्रॉम x टू t, देन आवर लिमिट्स आल्सो हैव टू चेंज, है ना, क्योंकि जब वेरिएबल x है और दैट टाइम द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 4 to 9, लेकिन जब वेरिएबल t है तब इंटीग्रेशन की वैल्यू तो अलग होगी, तो ढूंढना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू हियर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ वो इंटरचेंज और वो सब करने से तो अच्छा है, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक t के जो वैल्यूज है ना उसे निकाल देंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, जैसे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो t, देखो यहाँ पे 9 है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि t की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, फिर अपर लिमिट में इट विल बी 30 minus 9 raised to 3/2, और यहाँ पे t की वैल्यू लोअर लिमिट में क्या आएगी, इट विल बी 30 माइनस ये 4 है ना, सो दैट विल बी 4 raised to 3/2, है ना, एक के जगह पे। तो व्हाट विल यू गेट हियर, देयरफॉर
ओके देखो तो क्या मिलेगा आपको. When we do this, we don't have to bring the equation back to x. क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर this is going to be again 27. तो 30 minus 27 आपको डायरेक्टली 3 मिलेगा यहाँ पर, राइट. और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 22, है ना. गेटिंग इट. तो व्हेन यू डू दिस, तो ये वापस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. नाउ कैन वी जस्ट फिगर आउट इसको कैसे लिखेंगे. सी व्हाट हैपेंस. ओके, नाउ वी विल रीराइट दिस होल क्वेश्चन विद द टी पर्सपेक्टिव, और यू विल सी कि ऐसे एकदम व्हाट यू से वी रीराइट द we will rewrite the question. कैसे लिखेंगे इसको, चेक. सो नाउ दिस क्वेश्चन हमने वेरिएबल चेंज किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी t का इंटीग्रेशन, t का लिमिट्स लिखेंगे. t का लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट 22, अपर लिमिट 33, और यहाँ पे जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे t का, तो नाउ दैट वी नो दैट द डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी -2. डेरिवेटिव कितना है अपना, इट वॉज -2 -2/3. अच्छा वापस करते चलो, 1/t², ऐसे कुछ आया था ना वो, करेक्ट, dt. ओके, तो इसे तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, ये वी विल डू वन थिंग, वी विल राइट डाउन -2/3 आउटसाइड द ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ 22 to 3, अंदर आएगा t⁻², करेक्ट, dt. अच्छा, तो अब देखो क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे. तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आई राइट डाउन हियर, तो क्या लिखेंगे, -2/3, और इसका इंटीग्रेशन आएगा कितना, इट विल बी t⁻1, तो वी नो दैट इज गोइंग टू बी इन द डिनोमिनेटर विल बी t, करेक्ट. इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखते पता चलेगा, आई थिंक बेटर है ना, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बाद में करेंगे. ओके, तो नाउ इसका इफ यू इंटीग्रेट दिस व्हाट विल यू गेट, इफ यू इंटीग्रेट दिस विल बी -2/3 t, और यहाँ पे लगेगा t का लिमिट. t का लिमिट क्या है, 22/3. नाउ आई विल कंटिन्यू इट फर्दर फ्रॉम हियर. ओके, एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो वी गॉट दिस एज -2/3t, और यहाँ पे हमको मिला 22/33. अब हमको वापस वो सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको. तो ये माइनस तो निकल जाना चाहिए था ना अपना, 1 सेकेंड ना, माइनस, और ये -1 है ना, ये प्लस हो जाएगा, नीचे का -1 आएगा, या करेक्ट, ये प्लस हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट अस राइट दिस डाउन. वी विल राइट दिस एज 2/3, इसको रखेंगे ब्रैकेट में. ओके, इनसाइड यू विल राइट डाउन 1/t है ना, तो इट विल बी 1/3 minus 1/22. This is 2/3 into 22 minus 3 is going to be 19/22 into 3 will be 66. This is 2 1s are 2, 233. The answer is 19/99. सेम आंसर आएगा. ये एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम छोटा सा सोल्यूशन है ये. ओके, सी ये हम देखेंगे 7.10 में. सो नाउ वी नो टू मेथड्स, करेक्ट, वेयर वी सॉल्व द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड देन वी यूज द लिमिट्स एंड देन वी सॉल्व इट फर्दर. और दूसरा एक है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके, करेक्ट. नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग टेक्निक्स, उसमें वो डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ये दो चीजें हैं जो हमको करनी है, करेक्ट. तो वी विल सी. Okay guys, so as far as definite integrals is concerned, there are four methods as I said, and though method we have finished two methods, where the first method where we solve the equation, we can say by we solve the equation, we solve the integration, sorry,
we solve the integration by taking it as a indefinite one, correct? We solve integration, or rather we can say we integrate rather, correct? पहला कौन सा है कि we integrate by taking it as taking the indefinite इंटीग्रल एंड देन उसको वैल्यू डाल के ना, ये एक मेथड था। और दूसरा मेथड एक है जो जहां पे वी यूज अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, करेक्ट? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो टी का वैल्यू चेंज करके एंड ऑल दैट, करेक्ट? अब दो मेथड और बचते हैं डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन में, विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थर्ड मेथड इट इज डेफिनेट integral by parts और by partial fractions, ये फोर्थ वन है। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल by partial fraction, करेक्ट? ये दो बाकी हैं, करेक्ट? चलो एक एक करके we will take examples and we will kind of solve it, correct? So let's take one example here. अपना example is integration of, we have to integrate from 1 to 2 x dx by x plus 1 into x plus 2, correct? Okay, तो यहाँ पे what I have done is I have actually made a partition on the board because I think will become a little clutter, correct? अब जब ऐसे होता है तो हमें पता है ये जो फंक्शन है we will equate it to a by x plus 1 and b by x plus 2, correct? So therefore we can say that x by x plus 1 into x plus 2, this is equal to a by x plus 1 plus b by x plus 2. Okay, now if you cross multiply you will get x is equal to a into bracket x plus 2, डिनोमिनेटर निकल जाएगा क्योंकि दोनों बाजू डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा आपका, प्लस b into bracket x plus 1। अभी आपको अगर याद होगा तो sorry, what you can do is we have to eliminate a first and then find the value of b, and then we can eliminate b and then find out the value of a. Okay, so let us take x equal to minus, taking x equal to minus 2। अगर आप x को minus 2 लोगे तो क्या होगा, देखो it will be minus 2 is equal to a into bracket, आपका a 0 हो जाएगा, plus b into bracket minus 2 plus 1, that means you will get minus 2 is equal to minus b, और ये कट करके आपका 2 is equal to b, correct? Okay, now we have to find out the value of a, तो a के वैल्यू के लिए we have to eliminate b, so then we will take x is equal to minus 1। If you take x is equal to minus 1 तो क्या होगा, यहाँ पे we will write down minus 1 is equal to a into bracket minus 1 plus 2, correct? That is equal to what, क्योंकि b eliminate हो जाएगा ना यहाँ पे, you will have what, b into 0, correct? So it will be minus 1 is equal to minus, no, minus 1 is equal to a का वैल्यू क्योंकि प्लस 2 minus 1, करेक्ट? सो यू गेट योर 1 minus 1 is equal to a, ठीक है? ओके, आफ्टर यू गेट दिस वैल्यूज वी राइट द इक्वेशन अगेन। कैसे लिखेंगे इसको? अब आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस स्पेस ऑन द टॉप क्योंकि मुझे जरूरत है, ठीक है? सो इसको वी कैन राइट डाउन देयरफॉर the same equation now can be written as integration of 1 to 2 instead of x and यहाँ पे क्योंकि हमने इसको सेम फाइंड आउट किया है we can write this down as minus 1 by a के जगह पे minus 1 आएगा, करेक्ट?
-1 बाय, सी लिसन, आई डोंट नो वेदर, देखो what we did, we solved the function, that means x by x plus 1 into x plus 2, इसको सॉल्व करते करते वी फाउंड आउट दैट ये जो फंक्शन है ना उसको हम लोग अभी कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म, करेक्ट। अगर a और b की वैल्यू इस तरह से डाल के अगर हम वापस उसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट बैक द सेम इक्वेशन, करेक्ट। दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म विद द वैल्यू ऑफ a एंड b, करेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 फ्रॉम -1 to x plus 1, -1 बाय x plus 1 प्लस a की जगह पे और b की जगह पे क्या डालेंगे वैल्यू 2 बाय x plus 2, getting it? Okay, now if you integrate it, okay, dx तो है ही उसको लिखना पड़ेगा, करेक्ट। now if you integrate it तो what you will get, see you will get this will be integration of if you want you can integrate this by taking the indefinite integral का ये and then you can solve it further, लेकिन आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो you can take it as integration of -1 बाय x plus 1, लिमिट्स हम लोग बाद में डालेंगे, करेक्ट, प्लस 2 बाय x plus 2 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस x plus 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2 log of मॉड्यूलस x plus 2, करेक्ट। ओके, दैट मीन्स व्हाट, नाउ वी हैव आवर ये जो 2 है वो स्क्वायर करके जाएगा, तो कैन वी से माइनस लॉग ऑफ x plus 1 प्लस log ऑफ मॉड्यूलस x plus 2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि देखो n log m कैन बी रिटन एज log ऑफ m to the power n, तो ये जो 2 है वो स्क्वायर बन सकता है इस तरह से, गेटिंग इट? ओके, दैट मीन्स नाउ व्हाट कैन वी डू हियर, तो फिर ये प्लस है, हाँ, तो we can take this as minus, so now you see I'm just going to rearrange this. What do we have? We have log of modulus x plus 2 the whole square minus log of modulus x plus 1. अच्छा, log m minus log n is equal to log of m by n, correct? तो सेम थिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं and we can bring this equation to what state? We can write here this is equal to log of modulus x plus 2 the whole square by x plus 1. क्लियर है सबको? ये पूरा मॉड्यूलस है, करेक्ट? ओके, ये मॉड्यूलस के अंदर स्क्वायर जाना चाहिए, 1 सेकंड, तो दिस गोइंग टू बी स्क्वायर और ये पूरी मॉड्यूलस बनी, करेक्ट? अच्छा, इसका मतलब ये क्या मिला, ये हमारा फंक्शन है, दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, एंटी डेरिवेटिव, ओके, दिस इज आवर एंटी डेरिवेटिव। लेकिन हमारे पास है ना, व्हाट डू वी डू, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स आता है तो व्हाट डू वी डू हियर, देयरफॉर इफ यू हैव योर एफ, एक एंटी डेरिवेटिव आपको मिलता है तो आप क्या करते हो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट है ना, तो देयरफॉर कैन वी से दैट, अब ये देयरफॉर इंटीग्रेशन, so we can say therefore that integration of from 1 to 2 of x by x plus 1 into x plus 2 see dx, this is equal to, we can say, log of, अच्छा एक काम करते हैं, this is equal to f of 2 minus f of 1 करते, क्योंकि I have less space, करेक्ट। तो डायरेक्टली यहाँ पर दिस इज अपना एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 मतलब यहाँ पे वैल्यू डालना है हमको, किस में वैल्यू डालना है, 2 और इसका वैल्यू हमको डालना है इसके यहाँ पे, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, करेक्ट।
और एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ये आया है तो इसमें हम लोगों को 2 और 1 की वैल्यू डाल के वी हैव टू सॉल्व इट आउट। सो देयरफॉर वी कैन से दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको लिखेंगे हम log of x plus 2 square by x plus 1 मॉड्यूलस, इसको लिमिट लगाएंगे हम 1 एंड 2 की। तो अभी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी जब आपको करना हो तो नाउ लेट अस जस्ट डू इट। सो इज गोइंग टू बी log ऑफ b, मतलब 2 प्लस 2 क्या आएगा, ये 4, करेक्ट। एफ ऑफ बी मतलब सारे x को b डाल देना, ये हमारा b है और ये हमारा a है। तो व्हाट वी विल डू, दैट विल बी 4 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 3, करेक्ट। माइनस लिखना है, या फिर एक मिनट, यहाँ पे हम लोग डिवाइड लिखा है तो डिवाइड ही लिखेंगे, ओके। डिवाइडेड बाय माइनस log ऑफ, अभी 1 डालना है, log ऑफ b हो गया, अभी हम क्या करना है, 1 डालना है। सो 1 प्लस 2 विल गिव यू 3 और 3 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 विच इज 2, करेक्ट। तो ये आंसर कितना आएगा आपका, इट विल बी log ऑफ 4 4 जा 16 बाय 3 माइनस log ऑफ 9 बाय 2, करेक्ट। तो अगेन दीज आर टू log, तो इसको हम लोग ले सकते हैं log ऑफ 16 बाय 3 डिवाइडेड बाय, अगर डिवाइड करेंगे मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 9, करेक्ट। मॉड्यूलस वैल्यू देखो, डिवाइड करेंगे तो इनवर्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू log ऑफ मॉड्यूलस 32 बाय 27, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, करेक्ट। ये पॉजिटिव वैल्यू है, 32 by 7 is a positive value and this is supposed to be a constant, करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया है क्या किया है हमने, क्योंकि वी हैड टू फिट दिस इन वन पेज, तो लगता है थोड़ा सा एक साथ ही, लेकिन आप भी धीरे धीरे उसको समझो एंड देन यू गो अहेड विद इट, ओके। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग, ओके। तो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, okay। so we have integration of 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 of sine cube 2t into cos 2t dt। oh my god, अभी क्या करें, ओके देखो इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो वी कैन से लेट sin 2t equals to u। if you differentiate both the sides with respect to t, यहाँ पे हमको क्या करें, x तो है नहीं तो don't differentiate with respect to x, so you can just differentiate with respect to t, okay। तो क्या आएगा यहाँ पर फिर, this one भी sin 2t का डेरिवेटिव आएगा 2 cos 2t, क्योंकि cos 2t sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t और 2t का डेरिवेटिव 2, तो 2 cos 2t, करेक्ट। ओके, दिस विल बी इक्वल टू du by dt, ठीक है। अभी therefore dt is equal to du by 2 cos t, 2 cos 2t, सॉरी 2 cos 2t, अच्छा ये सही है, बट यहाँ पे हमको हमारी लिमिट्स तो चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये थोड़ा मैं नीचे लिखती हूँ तो लिमिट्स यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी यू बाय 2 cos 2t। यहाँ पे वी हैव टू चेंज द लिमिट्स। कैसे लिमिट्स चेंज करते, देखो जरा, देखो हमारा लिमिट दिया है 0 से लेके पाई बाय 4 तक। ये लिमिट तब यूज कर सकते हैं जब t है, लेकिन हम क्या करेंगे,
नाउ वी विल कन्वर्ट दिस लिमिट टू u। तो पहली बात तो यहाँ पर जब when t is equal to pi by 4, correct, then u is equal to sin 2 into pi by 4, करेक्ट। तो ये और ये निकल जाएगा, यू हैव साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आती है? साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 साइन 90, करेक्ट। और यहाँ पे when t is equal to 0 then u is equal to sine of 2 into 0 which is sine of 0 and sine 0 की वैल्यू है 0। तो अभी वही अपने लिमिट्स भी आ गए, तो नाउ वी डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट इट, सो वी कैन जस्ट रीराइट आवर इक्वेशन। जगह की मारामारी मुझे हो गई है वापस, तो करेंगे। ओके एनीवे चलो रीराइट करते हैं अपने फंक्शन को। तो आवर फंक्शन क्या है? दिस विल बी ये जो फंक्शन है अपना ऊपर का, अभी उसको u के फॉर्म में लिखेंगे हम, करेक्ट। देखो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ, अभी 0 to 1 लिखेंगे ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो गया अपना, 0 to u sin cube 2t will now become u cube because that was our substitution, u cube। और dt के जगह पे ओके cos 2t तो ऐसे ही रहेगा cos 2t, और instead of dt we can write down as du by 2 into cos 2t। तो ये cos 2t और ये cos 2t निकल जाएगा, आगे हाफ हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस डाउन एज हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 u क्यूब du। अभी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है भाई, देखो क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इट विल बी हाफ इंटू ब्रैकेट u टू द पावर 4 बाय 4, और ये जो पूरा का पूरा है उसको लिमिट लगा देंगे हम 0 to 1, राइट। अब जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, या फिर ब्रैकेट ना भी खोलना चाहो फिर भी ये 4 को बाहर लेके आओ, यू कैन से 1 बाय 8 इंटू ब्रैकेट u टू द पावर 4, मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a यूज करना है। f ऑफ b ये है आपका b, ये है आपका a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b आएगा 1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 0, सॉरी 0 टू द पावर 4, ओके 1 to the power 4 minus 0 to the power 4, this will be 1 by 8 into 1, answer is equal to 1 by 8, this is your answer। It becomes very easy when you change the limits, I think it's just a cakewalk when you do that, correct, okay। अभी here I in the beginning itself I had said that यही explanation में I am going to finish with 7.9 and 7.10 क्योंकि बहुत ज़्यादा साथ साथ में है दोनों भी, और हमने वैसे भी आधे से ज़्यादा करा चुके हैं वहाँ पर, तो एक हाथ दो सम्स और करके we will just finish 7.10 fresh। I can then record a video for you all which will be for 7.11, correct। So let us see यहाँ पे क्या है, ये 7.10 का इंट्रोडक्शन है, जैसे कि इसमें 7.10 में वी हैव डेफिनेट इंटीग्रल्स प्लस इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया था ना, तो अभी 7.9 में जो हमने किया था उसी को आगे चलाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर, ओके क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं 7.9 whatever we have done we will just do two sums okay to understand 7.10 का, और उसके बाद तो I think you will get it any which way। तो let's do one sum for this is going to be for 7.10 का intro है ये, okay। तो what are we going to do here, let's take one example, let's say integration of -1 to 1, और यहाँ पे आएगा 5x to the power 4 root of x to the power 5 plus 1 dx, correct। अच्छा तो now here एक substitution यूज करेंगे यहाँ पर, therefore can we take x to the power 5 plus 1
इज इक्वल टू टी, है ना। तो ये कितना आएगा 5x टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो फिर dx क्या आएगा, dx इज इक्वल टू डी टी बाई 5x टू द पावर 4। अरे याद है ना, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव देखना है और डेरिवेटिव को गायब कर देना है हमको, करेक्ट। तो ये फंक्शन क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन है, किस में देखना है, इसमें देखना है। हमारे पास दो ऑप्शंस है, इसको t ले लो और उसका डेरिवेटिव निकालो, या फिर इसको t ले लो और उसका डेरिवेटिव निकालो। चूज आप ऐसा करो जिसमें से जो डेरिवेटिव पार्ट है वो गायब हो जाए। तो अगर हम इसको लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाता है। 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर सही से किया होगा तो भाई ये इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने में। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स चेंज करा देंगे। क्या करेंगे लिमिट्स के लिए, ये लिमिट हमारी है -1 से लेके 1 तक। तो अभी हम लोगों को लिमिट चेंज करनी है। कैसे करेंगे, सो देखो when x is equal to 1, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो when x is equal to 1, ओके, when x is equal to 1, तो इसमें डाल सकते हैं ना। सो t is equal to what, t is equal to x to the power 5 plus 1, क्योंकि ये लिया है ना t को तो हमने, करेक्ट। t वैल्यू इधर है ना, ये वैल्यू में डालेंगे हम। x is equal to 1 तो t is equal to 2, करेक्ट। x is equal to 1 तो t आएगा हमारा 1 to the power 5 plus 1 which is equal to 2, करेक्ट। इसका अपर लिमिट 2 आ गया। अब लोअर लिमिट निकालते हैं कि when x is equal to -1, तो t is equal to, देखो x की पावर ऑड है तो वो ऑड ही रहेगा, विल बी -1 + 1 तो इट विल बी 0, तो t is equal to 0, ये लोअर लिमिट आ गया। अब व्हाट वी विल डू, अभी हमेशा की तरह वी विल बी राइटिंग आवर इक्वेशन अगेन, लेकिन इस बार हम लोग t में लिखेंगे और x में वापस नहीं आएंगे, उधर ही उसका निकाल लगा देंगे। तो क्या आएगा अपना, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, हाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी वी विल राइट द न्यू लिमिट्स 0 to 2, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 5x to the power 4 into √t, और dt के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज इक्वल टू dt बाय 5x to the power 4। तो ये और ये तो भाई कट जाएगा, करेक्ट। एंड वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t 0 to 2, करेक्ट, dt। अभी काफी आसान है मेरे ख्याल से, क्योंकि t रूट t मतलब t to the power हाफ, तो n+1 by n+1 करेंगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल गिव यू t to the power हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, और वो आएगा 0 से लेके 2 तक। तो अभी बहुत आसानी हो गया है इसको, आई विल जस्ट सजेस्ट इट हियर ओनली, दिस इज इक्वल टू t to the power 3/2 बाय 3/2। अच्छा 3/2 तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना, आई कैन गेट द 2 ऑन द टॉप, करेक्ट। अच्छा तो ये आएगा 0 से लेके 2 तक। अभी लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ, देखो फटक करके आंसर, ये 2/3 है ना, उसको बाहर ले लेते हैं, 2/3 इनटू ब्रैकेट f of b minus f of a, f of b मतलब 2 raised to 3/2, करेक्ट, माइनस f of a मतलब 0 raised to 3/2, करेक्ट। तो ये कितना आएगा 2 raised to 2/3 इंटू 2 raised to 3/2 कितना आएगा बताओ, 2 raised to 3/2 मतलब दिस इज एक्चुअली 2 raised to 3/2 is actually 2 into 2 to the power half, no, that is equal to root, that is so 2 into 2 to the power half, correct। तो ये सीधा कितना आएगा 2 to the 4 √2 आ जाएगा, करेक्ट। so this is equal to, ये आंसर आपका आएगा, this is equal to 4√2/3, ये आंसर आएगा, करेक्ट। बस और एक सम 7.10 के लिए,
खलास। उसके बाद वी विल जस्ट गो एंड डू अवर एक्सरसाइज। आपको आ ही जाएगी, उसमें ज़्यादा तकलीफ। ओके तो 7.10 का और एक एग्जांपल लेके एक्सरसाइज खत्म करते हैं। दिस इज लेट्स टेक वन सम व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 of tan inverse x by 1 plus x square dx। ठीक है, ओके सो यहाँ पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे एंड वी कैन टेक let tan inverse x equals t, correct? So when you substitute, when you integrate, when you differentiate it on both the sides, what will you get? You will get 1 plus 1 by 1 plus x square is equal to dt by dx। ठीक है, अब dx क्या आएगा फिर? Your dx is equal to dt into 1 plus x square। जिसने भी 7.2 एकदम ढंग से किया है ना, उसको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ये इसको मैं नीचे लिखती हूँ क्योंकि हमको इसका लिमिट चेंज करता है, ये हमेशा मैं भूल जाती हूँ। ओके तो वी हैव dx इक्वल टू dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट चेंज करना है हमको। लिमिट कैसे चेंज करेंगे हम? देखो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 1, हमारा अपर लिमिट 1 है, करेक्ट? व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, okay, that means tan inverse 1, tan inverse 1 that is t is equal to tan inverse, correct? आप देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन एक बताती हूँ आपको, then we can substitute। देखो tan t, see, tan inverse x is equal to t, so can we say x is equal to tan t, है ना? और x तो 1 है, तो 1 is equal to tan t, मतलब t की वैल्यू 45 हो गई ना, 45 डिग्री, बिकॉज 1 इज इक्वल टू tan 45 और tan 45 का रेडियन वैल्यू में क्या डालेंगे हम लोग? दैट्स इक्वल टू पाई बाय 4, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4। तो अगर ये पाई बाय 4 है तो हमारा इफ x इज इक्वल टू 1 देन कैन वी से दैट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, ऐसे बोल सकते हैं ना हम, करेक्ट? व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू पाई बाय 4, करेक्ट? अच्छा, सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वी हैव x इज इक्वल टू क्या? 0, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। अब उसका भी कैलकुलेशन करते हैं, बाद में ये साइड में इरेज कर लूंगी, आप आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है? नाउ यहाँ पे अगेन वी विल हैव व्हाट? सिमिलरली t इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। देखो सिमिलरली इसके बाजू बाजू में ही करते हैं, तो कैन वी टेक दैट tan inverse x is equal to t, so x is equal to tan t, 0 is equal to tan t, तो tan 0 ही होता है, करेक्ट? t का वैल्यू 0 ही आएगा, करेक्ट? सो that is 0 is tan 0 is equal to 0, right? तो यहाँ पे we will get what? We will get our lower limit value as tan equal to, sorry, t equal to 0। तो ये हमको हमारे t के फॉर्म में अपर और लोअर लिमिट मिल गए। अब तो भाई हमें करना ही नहीं है कुछ, जस्ट सॉल्व करना है, वैल्यू डाल देनी है बस। सो आई एम रेजिंग दिस बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड स्पेस, बट आप आपकी बुक में कहीं पे लिख लीजिएगा so that you can then refer to it when you look for it, when you look at the sum later on, correct? sums हमेशा ऐसे सॉल्व करो कि बाद में हम खुद भी देखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि हमने किया क्या है। ऐसे नहीं कि झाल महल किधर भी कुछ भी लिखो और हमको पता ही ना चले खुद को कि भाई हमने करना क्या था, ठीक है? नॉट लाइक दैट, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू एनी काइंड ऑफ सम। ओके चलो फिर, नाउ कैन वी राइट आवर इंटीग्रेशन? सो हाउ आवर इंटीग्रेशन विल लुक लाइक? rewrite our integration with the limits। so now we are going to write this integration as integration of lower limit 0 upper limit pi by 4, करेक्ट? tan इनवर्स की जगह पे क्या लिखेंगे? t, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, dx की जगह पे क्या लिखेंगे? dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये तो कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 ऑफ t dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है पता है सब? ये बताओ, है ना? आई होप याद है रे भैया,
इसका इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाय 2 इंटू सॉरी लिमिट डालेंगे 0 टू पाई बाय 4 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना है हमको करेक्ट। ये हाफ को बाहर निकालेंगे वी कैन राइट दिस एज हाफ इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ बी मतलब पाई बाय 4 द होल स्क्वायर माइनस 0 द होल स्क्वायर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये आपका बी है ये आपका ए है करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट खोलोगे दिस विल बी पाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर 16 और 16 का 16 इंटू 2 दैट विल बी 32 करेक्ट। बस एकदम इजी है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है छोटा छोटा है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है और उन्हीं को सिंपल लगेंगे जो प्रैक्टिस करेंगे, वरना आपने एक वर्ड देखा रहेगा जिसे कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। पूरा मैथ्स का अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा। अगर वो नहीं करना है तो सॉल्यूशंस खुद ट्राई करो, नहीं आता है फिर पूछो, वापस ट्राई करो, खुद करो, खुद खुद करो। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं समझेगा। मैथ्स में खुद करना पड़ता है, ठीक है। चलो तो वी विल स्टॉप हियर नाउ विद 7.10 7.11 अपने आप में कॉन्सेप्चुअली एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। I will share the details and the introduction and recording of 7.11 very soon. Okay. Thank you guys. Bye. Bye.